Welcome to VLearn. This is session 2, part A of technology transfer. In today's session, we are going to discuss about approach for planning and implementing a technology transfer. So first of all, here we are going to discuss about technology transfer process issues. After that, we are going to discuss about problems during the technology justification and selection stage. After that, we are going to discuss problems during the planning stage. After that, we will discuss problems during negotiations. Then we are going to discuss about problems during technology transfer implementation, and after that we are going to discuss about corporate capability issues. After covering those topics, we are going to discuss about problems due to inadequate skills, then problems due to ineffective management, and at last we are going to discuss about operating environment and national innovation system, that is NIS issues. So first of all, let us discuss about technology transfer process issues. So here are the problems during the technology justification and selection stage. किसी भी टेक्नोलॉजी के जस्टिफिकेशन में या सिलेक्शन में जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन मिस जजमेंट्स व्हेन प्रिपेयरिंग अ बिजनेस केस फॉर अ टीटी प्रोजेक्ट, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट. दैट मीन्स अगर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी बिजनेस में ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अगर आपने टेक्नोलॉजी रॉन्ग चूज की है, if you have made a wrong selection, then also some problems may occur. The next point here is the cost of buying, installing, operating and maintaining the technology is too high. किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में यहाँ पर कॉस्ट हाई हो सकती है. ये ऑपरेशंस जो हो सकते हैं वो बाइंग हो सकता है, इंस्टॉलिंग हो सकता है, ऑपरेटिंग हो सकता है एंड मेंटेनेंस. द नेक्स्ट पॉइंट इज the technology selected is too complex for easy understanding and assimilation of the transferee. जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ट्रांसफर के लिए, वो ट्रांसफरी के लिए हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो, उसको ट्रांसफर ऑपरेशन परफॉर्म करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हो. सो अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम यूज करेंगे, देन ऑल्सो वी कैन फेस दीज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. The next point is the technology needs considerable adaptation to suit local conditions. Similarly, the last one is obsolescence of technology while the transfer is in progress. Obsolescence होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, reduction होना चाहिए during the transfer of technology. Now, here the next topic is problems during the planning. In this phase, we are going to discuss about the problems which we generally face during the planning process. So the first point here is transferer, that means seller underestimates the problems in transferring the technology to a developing country setting. That means यहाँ पर जो seller होता है या जो transferer होता है वो underestimate करता है problems को. That means वो problems को ढंग से समझ नहीं पाता, और जो complex problems हैं उनको easy समझ लेता है, या जो easy problems हैं उनको complex समझ लेता है. इससे इस मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं ड्यूरिंग प्लानिंग फेज. द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज ट्रांसफरर डज नॉट फुली अंडरस्टैंड ट्रांसफरी नीड्स. जो ट्रांसफरर होता है वो फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता ट्रांसफरी की नीड्स को. देन ऑल्सो द प्रॉब्लम्स अकर्स ड्यूरिंग द प्लानिंग फेजेस. द लास्ट पॉइंट हियर इज ट्रांसफरी मैनेजर्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग विच इज कैरीड आउट ओनली बाय द transferer. Now the next point here is related to the problems of planning stages. The next point is too much attention is paid to the hardware to be purchased and not enough attention is paid to skills and information acquisition. Information acquisition में या परचेजिंग में यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. ज़्यादा फोकस किस पर किया जाता है, कभी कभार जो हम हार्डवेयर परचेज करना है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है. So this may also be a problem during the planning phase. The next point here is overestimation of the technological capabilities
of the transferee by the transferer, thereby leading to unrealistic expectations on how well the transferee can meet target dates. That means ओवर एस्टिमेशन का मीन्स मतलब है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस मीन्स जितना आपको आउटपुट जनरेट करना था उसको आपने सपोज एस्टिमेट लगाया कि हमें डबल अमाउंट जनरेट करना है, डबल आउटपुट चाहिए. सो हमें जो हमारी गोल्स होते हैं वो रियलिस्टिक डिफाइन करने चाहिए जिनको हम इजीली अचीव कर सकें. वी शुड नॉट डिफाइन द गोल्स विच आर नॉट रियलिस्टिक. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग नेगोशिएशंस. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग नेगोशिएशन इज डिफरेंसेस इन नेगोशिएशन अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज. प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं नेगोशिएशन में? पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि जो हम स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं या अप्रोचेज यूज कर रहे हैं उनमें डिफरेंस होना. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द ट्रांसफर एंड द ट्रांसफरी. दोनों के बीच में अगर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी देन ऑल्सो द प्रॉब्लम्स में अकर. द नेक्स्ट पॉइंट इज गोल इनकम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग नेगोशिएशंस. गोल्स जो हैं वो इनकम्पेटेबल हैं, दैट मीन्स वो रियलिस्टिक नहीं है, देन ऑल्सो द प्रॉब्लम्स में अकर. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज inability to reach agreements on pricing, product and marketing strategies. Similarly, the last one is both parties try to achieve results in an unrealistically short period of time. Suppose हमें यहाँ पर कोई टास्क परफॉर्म करना है लेकिन हमने टाइम ड्यूरेशन काफ़ी शॉर्ट यूज़ की है, डिफाइन की है. सो अगर हम उस टाइम पीरियड में रियलिस्टिक हमें यहाँ पर टाइम पीरियड डिफाइन करना चाहिए क्योंकि अगर उस टाइम पीरियड में हम गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे देन इट हैज़ अ बैड इम्पैक्ट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन. सो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, रियलिस्टिक गोल्स डिफाइन किए जाने चाहिए, अदरवाइज देयर दीज प्रॉब्लम्स मे अकर ड्यूरिंग नेगोशिएशंस. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इम्प्लीमेंटेशन. सो हियर द फर्स्ट प्रॉब्लम इज शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैनेजर्स. जो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर हम फेस करने को मिलती है इम्प्लीमेंटेशन में वो होती है शॉर्टेज ऑफ मैनेजर्स. जो प्रॉपर मैनेजर्स जो कि टास्क को प्रॉपर वे में कैरी आउट कर सकें उनकी अगर शॉर्टेज है देन ऑल्सो विल फेस द प्रॉब्लम्स. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ ट्रस्ट इन ट्रांसफर डेवलप्ड सिस्टम्स बाय द ट्रांसफरी. ट्रांसफरी के थ्रू जो ट्रांसफरर ने जो सिस्टम्स डेवलप किए हैं वो उनमें ट्रस्ट नहीं होता, वो उन पर बिलीव नहीं करते. दैट मीन्स द सिस्टम विच आर डेवलप्ड बाय द प्रोग्रामर्स हियर these they thought that they are not capable enough. Similarly, inability to achieve quality targets. जो हमारे टारगेट्स हमने डिसाइड किए थे उनको अचीव नहीं कर पाते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज डिले इन ऑब्टेनिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल्स नीडेड फॉर क्विक इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द लोकल एनवायरमेंट. नाउ the next point here is high cost and poor quality of locally available materials needed to implement the technology transferred. टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर हाई कॉस्ट हो सकती है, पुअर क्वालिटी हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ सकती हैं. देन इनएडिकेट ट्रैकिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर इनएडिकेट ट्रैकिंग की गई है अगर टेक्नोलॉजी की तो भी ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं. देन कॉस्ट ओवररन ड्यू टू पुअर इम्प्लीमेंटेशन. दैट मीन्स अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन किसी भी प्रोजेक्ट का प्रॉपर वे में नहीं किया है तो जो हमारी कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट यूज होनी थी उससे ज़्यादा भी हो सकती है. सो दिस में ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन फेज. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कॉर्पोरेट कैपेबिलिटी इश्यूज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स ड्यू टू इनएडिकेट स्किल्स. सो जो प्रॉब्लम्स हमें इनएडिकेट स्किल्स की वजह से फेस करनी पड़ती हैं वो प्रॉब्लम्स हैं लाइक फर्स्ट वन हियर इज इनएबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी टू अट्रैक्ट द रिक्वायर्ड स्किल्स ड्यू टू फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल रेस्ट्रिक्शंस. जो ट्रांसफरी है हमारा यहाँ पर वो इनेबल नहीं हो पाता, इतनी उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो अट्रैक्ट कर सके रिक्वायर्ड स्किल्स को ताकि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके. सो दैट मीन्स a person here does not have the ability to meet the requirements of a organization. The next point here is
lack of experience of the transferees workforce and absence of required skills at the industry level. That means यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है प्रॉपर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, प्रॉपर वे में टास्क को कैरी आउट करने के लिए, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं. कोई टास्क हो सकता है प्रॉपर वे में नहीं कैरी आउट हो पाए. सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर इज लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रांसफरी पर्सनल. जो पर्सन्स ट्रेनिंग में, जो पर्सन्स डेटा ट्रांसफर में या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इन्वॉल्व हैं, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इफ दे आर नॉट being trained properly, then also problems may occur in a system. The next point is absence of incentive systems at the transferee firm for learning and assimilating new technologies. New technologies को लर्न करने के लिए या ट्रांसफरी के एंड से अगर हम कहें तो यहाँ पर प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं होते, एब्सेंस होता है उनका, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं ड्यू टू inadequate skills. Now the next point here is language barriers that inhibit effective communication between transferer and transferee personnel and restrict effective transmission and assimilation of relevant information. That means जो यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. लाइक डिफरेंट सिटीज से, कंट्रीज से या स्टेट से पीपल्स आते हैं, दे हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन. बट अगर उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, देन ऑल्सो इफ दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर प्रॉपरली, देन ऑल्सो द प्रॉब्लम्स में अकर. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ड्यू टू इनएफेक्टिव मैनेजमेंट. सो हियर द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ विजिबल एंड कमिटेड टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट. अगर टॉप मैनेजमेंट प्रॉपर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती है किसी भी प्रोजेक्ट को, देन ऑल्सो द प्रॉब्लम्स में अकर. Then lack of top management guidance to decide the type of the technology to be acquired, remuneration, incentives associated with the transfer and the control of the flow of information. That means अगर गाइडेंस प्रॉपर नहीं है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, रेम्यूनरेशन नहीं हो रहा है, देन ऑल्सो द प्रॉब्लम्स में अकर इन अ ऑर्गेनाइजेशन. द नेक्स्ट पॉइंट इज differences in working methods and practices between the transferer and transferee managers. That means work methods में, उनके काम करने के तरीके में अगर डिफरेंस है टॉप मैनेजमेंट पर के लेवल्स पर, तो भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं इन अ मैनेजमेंट. देन प्रॉब्लम्स ड्यू टू इनफेक्टिव मैनेजमेंट. यहाँ पर हम एक और पॉइंट ले सकते हैं, लाइक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल कंपटीशन for the ownership of the technologies and the presence of the not invented here syndrome. यहाँ पर अगर कंपटीशन है, अगर इन्वॉल्व विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स, देन ऑल्सो द प्रॉब्लम्स में अकर इन अ मैनेजमेंट. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इश्यूज ऑफ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट एंड नेशनल इनोवेशन सिस्टम. सो हियर द फर्स्ट इशू इज shrinking of local markets due to adverse changes in the economic levels of the country. यहाँ पर फर्स्ट इश्यू क्या है, जो मार्केट है वो हमारे रिड्यूस होते जा रहे हैं ड्यू टू द इकोनॉमिक लेवल्स. डेली इकोनॉमिक लेवल्स चेंज हो रहे हैं कंट्री के, तो उसकी वजह से मार्केट्स श्रिंक हो रहे हैं. द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज पुअर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है तो भी ये एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज the first look is the first impression is the last impression, so it should have a proper infrastructure. The next point here is, the next issue is inadequate supportive institutional infrastructure to provide support in terms of finance, information, skill development and technology brokering. यहाँ पर sufficient support नहीं होता, तो सफिशिएंट सपोर्ट नहीं हो पाता है, इसकी वजह से जो हमारी स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाती, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो पाती, एंड ड्यू टू दिस ऑल्सो द टास्क, द ऑपरेशंस इन अ ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट कैरीड आउट प्रॉपरली. द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज इनएडिकेट मैकेनिज्म्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन. जो मेथड्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं प्रोटेक्शन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ पर वो प्रॉपरली यूज नहीं हो पाते. ये एक बहुत बड़ा इशू है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ लोकल सप्लायर्स
who can deliver quality supplies and lack of policies to develop such suppliers. So here basically जो suppliers होते हैं वो ज़्यादा यहाँ पर उनका ज़्यादा अमाउंट नहीं होता. यू कैन से दे आर हैविंग दे आर अ लैक ऑफ लोकल सप्लायर्स हु कैन डिलीवर क्वालिटी सप्लाईज. दैट मीन्स मार्केट में ऐसे सप्लायर्स अवेलेबल नहीं होते जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकें. उनका जो अमाउंट है, जो नंबर है, वो काफ़ी लिमिटेड है. द नेक्स्ट इशू इज हाई डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सप्लायर्स एंड इम्पोर्ट्स. दैट मीन्स यहाँ पर हाई डिपेंडेंसी होती है जो हमारे फॉरेन सप्लायर्स हैं उन पर, यानी कि हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट स्टेट से, कंट्रीज से. तो ये भी एक बड़ा इशू है. द नेक्स्ट इशू इज लैक ऑफ गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस टू अपग्रेड स्किल्स. यहाँ पर गुड एजुकेशन की भी कमी होती है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस अपग्रेड नहीं होते, स्किल्स को वहाँ पर अपग्रेड नहीं किया जाता. दिस इज ऑल्सो ए बिग प्रॉब्लम. देन द लास्ट इशू इज ineffective legislation and incentives such as tax holidays, tariff adjustments and industry parks to promote technology transfer. यहाँ पर ineffective legislation होता है, incentives होते हैं, यहाँ पर tariff adjustments नहीं हो पाता, इसीलिए जो हमारे यहाँ पर proper technology transfer नहीं हो पाता, उसको हम promote नहीं कर पाते. So these are the issues which are related to operating environment and national innovation system. So this is the end of this session. Thank you.